हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में इंग्लिश जो सेकेंड ईयर का कोर्स है उसका ये यूनिट स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। 100 साल पहले एक अजीम अमरीकी जिसके अलामती साए में हम आज खड़े हैं ने आज़ादी के बाज़ाबिता ऐलान पर दस्तखत किए। This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice। ये अजीम हुक्मनामा लाखों हबशी ग़ुलामों के लिए एक उम्मीद की रहनुमा रोशनी की तरह साबित हुआ जो कि तबाहकुन नाइंसाफ़ी के शुगलों में जलस रहे थे। नाइंसाफ़ी वहाँ पर लोग उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे जो हबशी लोग थे, काले जो लोग थे, ग़ुलाम थे। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। ये ग़ुलाम की लंबी रात को ख़त्म करके एक खुशकुन सुबह के तौर पर आया। But 100 years later we must face the tragic fact that the Negro is still not free। 100 साल बाद आज भी हम इस बात पर अफसोस करते हैं। हम इस अफसोसनाक हकीकत का सामना ज़रूर करना है कि हबशी ग़ुलाम अब भी आज़ाद नहीं हैं। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination। 100 साल बाद हबशी ग़ुलाम की ज़िंदगी अब भी तफरीक़ की ज़ंजीरों और तन्हाई के हथकड़ियों में दर्दनाक अंदाज से जुकड़ी हुई है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity। 100 साल बाद भी हबशी मादी खुशहाली के वसी समंदर के दरमियान गुर्बत के तन्हा जजीरे पर रहता है। 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land। 100 साल बाद भी हबशी अमरीकी मुआशरे के कोनों में निडाल है और अपनी ही सरजमीन से अपने आप को जलावतन में पाते हैं। So we have come here today to dramatize an appalling condition। बस हम आज यहाँ पर इस खौफनाक सूरत हाल को ड्रामाई अंदाज में पेश करने के लिए आए हैं। In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check। एक मफ़हूम में हम यहाँ पर अपने कौमी दारुल हिलाफे को एक रक़ा तोड़वाने आए हैं। When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir। जब हमारे जमहूरिया के मेमारान आइन के अजीमुशान अल्फाज लिख रहे थे तो वो एक इफ़ाए अहद का रक़म लिख रहे थे जिसका हर एक अमरीकी को वारिस बनना था। This note was a promise that all men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness। ये याददाश्तनामा एक वादा था कि तमाम इंसानों को ज़िंदगी, आज़ादी और खुशी की जुस्तजू के नाकाबिल इंतकाल हकूक़त की ज़मानत दी जाएगी। It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned। आज ये बात वाज़ेह आया है कि अमेरिका में इस अहदनामे पर जहाँ तक रंग के शहरियों का ताल्लुक़ है कसूरवार हो चुकी हैं। Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds। उस मुक़द्दस फ़र्ज़ को निभाने के बजाय अमेरिका ने हबशी लोगों को एक खराब रक़ा दे दिया है
जिस पर नाकाफ़ी रकूम का निशान लगाकर वापस किया जा चुका है। But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. लेकिन हम ये यकीन करने से इनकार करते हैं कि इंसाफ का बैंक दिवालिया है। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great wallets of opportunity of this nation. हम ये यकीन करने से इनकार करते हैं कि इस कौम के मौक़े के सहराबों में नाकाफ़ी रकूम हैं। So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. बस हम इस रक़ा को कैश करने आए हैं, एक ऐसा रक़ा जो मुतालिबा करने पर हमें आज़ादी की दौलत और इंसाफ की ज़मानत देगी। We have also come to this hallowed spot to remind America and the fierce urgency of now. हम इस मुक़द्दस जगह को अमरीका को इसी वक्त की अशद तरीन ज़रूरत को याद दिलाने आए हैं। This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing of gradualism. ये वक्त ठंडा होने के ऐश व इशरत में मसरूफ़ होने और तदरीज की हिकमत अमली अपनाने का नहीं है। Now is the time to make real the promises of democracy. अब वक्त है जमहूरियत के वादों को हकीकत बनाना। Now is the time to rise from the dark and dissolute valley of segregation to the sunlit path of racial justice. अब अलहदगी की वीरान वादी से निकलकर नस्ली इंसाफ के मुनव्वर रास्ते की तरफ बेदार होने का वक्त है। Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children. अब अल्लाह ताला की तमाम मखलूक को मौक़े के दरवाज़े खोलने का वक्त है। Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. अब नस्ली नाइंसाफ़ी के रेत के दलदल से भाईचारे की मजबूत चट्टान की तरफ कौम को सरफराज करने का वक्त है। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. कौम की इस वक्त की इस अशद ज़रूरत को नज़रअंदाज करना और हबशी के मुसम्मम इरादे कमतर समझना मुहलिक होगा। This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. हबशी के इस जायज़ बेचैनी का गर्म और नमदार मौसम ख़त्म नहीं हो जाएगा, हत्ता कि यहाँ पर आज़ादी और मसावत का तवानाई बहश मौसम ख़ज़ा नहीं आता है। 1963 is not an end but a beginning. 1963 का साल इख्तिताम नहीं बल्कि एक आगाज़ है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. वो लोग जो ये उम्मीद रखते हैं कि हबशी को जज्बात ठंडा करने की ज़रूरत थी और अगर ये कौम भी मामूल की तरह अपने काम पर लौट आती है तो उनको बहुत बड़ी गैर मुहज़्ज़ब बेदारी का एहसास हो जाएगा। There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. उस वक्त तक अमेरिका में आराम और सुकून नहीं होगी जिस वक्त तक हबशी को अपने शहरी हकूक़ नहीं दिए जाते हैं। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. बगावत का गर्दबार उस वक्त तक उस कौम की बुनियादों को हिलाना जारी रखेगा जब तक इंसाफ का रोशन दिन तुलू नहीं होता है। But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे अपने उन लोगों को कहना चाहिए जो इंसाफ के महल को जाने वाले दरीचा पर खड़े हैं। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds.
अपनी जायज़ मकाम को हासिल करने के दौरान हमें गलत अमाल के कसूरवार नहीं होने चाहिए। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. हमें आज़ादी की प्यास बुझाने की कोशिश में नफ़रत और तिल्खी के प्याले से नहीं पीना चाहिए। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. हमें हमेशा नज़्म ज़ब्त और शराफत के आला मुकाम से अपनी कोशिश का अहतमाम करना चाहिए। We must not allow our creative protest to generate into physical violence. हमें अपनी तामीरी एहतिजाज को जिस्मानी तशद्दुद में बिगड़ने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. हमें जिस्मानी क़ुव्वत का मुकाबला करने के लिए रूहानी क़ुव्वत की शानदार बुलंदियों की तरफ बार बार उभरना चाहिए। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, and their freedom is inextricably bound to our freedom. अजीब व गरीब नई जंगजूयत जिसने हबशी फ़िरक़ा को निगल लिया है, हमें तमाम गोरे लोगों की बदइतिमादी की तरफ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे गोरे भाई जैसा कि आज उनकी यहाँ पर मौजूदगी गवाही देती है कि उनकी तकदीर हमारे से बंधी हुई है और उनकी आज़ादी इन सुलझे अंदाज में हमारी आज़ादी से पेवस्त हैं। We cannot walk alone. हम तन्हा नहीं चल सकते। And as we walk, we must make the pledge that we shall march ahead. और जैसा कि हम चलते हैं हमें ये वादा ज़रूर करना है कि आगे ही चलेंगे। We cannot turn back. हम वापस नहीं मुड़ सकते हैं। There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? वहाँ ऐसे लोग हैं जो शहरी हकूक़ की पुजारियों से पूछ रहे हैं कि आप कब मुतमईन होंगे। We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक हबशी पुलिस की नागुफ्ता बसंगदिली की दहशत का शिकार नहीं रहते हैं। We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते हैं जिस वक्त तक हमारे सफरी थकावट से भारी अजसाम बड़े शाहराहों के मोटलों और शहरों के होटलों में बसेरा हासिल नहीं कर सकें। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक हबशी की बुनियादी तहरीक एक छोटे से गंदे इलाके से बड़े इलाके को नहीं होता है। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. हम उस वक्त तक कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते हैं जब तक मिसिसिपी का हबशी वोट नहीं डाल सकता है और न्यूयॉर्क का हबशी यकीन करता है कि उसके पास वोट का कोई जवाज़ नहीं। No, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. नहीं, हम मुतमईन नहीं हैं और हम मुतमईन नहीं होंगे हत्ता कि इंसाफ पानियों की तरह और सदाकत एक ताकतवर नदी की तरह नीचे ललकड़ाने न लगे। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. मैं बेएहसास नहीं हूँ कि मैं आपसे बाज़ यहाँ पर बड़ी सख्तियों और आजमाइशों से गुजर कर आए हैं। Some of you have come fresh from narrow jail cells. आप में से कुछ जेल की तंग कोठलियों से ताज़ा आए हैं। Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered for the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. आप में से बास ऐसे इलाक़ों से आए हैं जहाँ पर आज़ादी की जस्तजू पर ईज़ा रसानी के तूफ़ान ने आपको मार कर गिराया था और पुलिस की दरिंदगी ने आपको बदहवास कर दिया था। You have been the
veterans of creative suffering. आप तख्लीकी सऊबतों के आजमूदा सिपाही हैं. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. इस अक़ीदा के साथ काम जारी रखो कि नाजायज़ अज़ियत निजात दहिंदा होता है. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to the South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums of ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. मिसिसिपी वापस जाओ, अलाबामा वापस जाओ, जनूबी कैरोलिना वापस जाओ, जॉर्जिया वापस जाओ, लुइसियाना वापस जाओ और हमारे जनूबी शहरों के कच्ची आबादी और गंदे इलाकों में वापस जाओ, इसको जानते हुए कि यह हालत तब्दील हो सकती है और हो जाएगा. Let us not wallow in the valley of despair. आइए हम मायूसी की वादी में गलीज न रहें. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. मेरे दोस्तों, मैं आज आपको कहता हूँ कि इस लम्हे के मुश्किलात और मायूसियों के बावजूद मेरा अब भी एक ख्वाब है. It is a dream deeply rooted in the American dream. ये एक ख्वाब जो कि अमरीकी सीने में गहरा गाड़ा हुआ है. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उभर कर अपने मुस्लिखा उसूलों के निज़ाम को हकीकत का रंग दे देगी. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. हम इन हक़ाइक़ को अज़हूद अश्कारा समझते हैं कि तमाम इंसान मसावी यानी बराबर पैदा किए गए हैं. I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर साबिक़ा ग़ुलामों के बेटे और साबिक़ा ग़ुलामों के आकाओं के बेटे भाईचारे के मेज़ पर इकट्ठे बैठने के काबिल होंगे. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा एक ख्वाब है हत्ता कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत एक रेगिस्तानी रियासत जुल्म और नाइंसाफ़ी के तपश से तर रियासत आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में तब्दील हो जाएगा. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन मेरे 4 छोटे बच्चे एक ऐसे कौम में रहेंगे जहाँ पर वो अपनी रंगत से नहीं बल्कि अपने किरदार के असबाब से मालूम किए जाएंगे. आज मेरा एक ख्वाब है. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with the little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन अलाबामा की रियासत जिसके गवर्नर के होंठों से उस वक्त मुदाहलत और मंसूहे के अल्फाज टपक रहे हैं एक ऐसी सूरत हाल में तब्दील हो जाएगी कि वहाँ काले लड़के और काली लड़कियाँ छोटे गोरे लड़कों और छोटी गोरी लड़कियों से हाथों में हाथ डालने और भाइयों और बहनों की तरह चलने के काबिल होंगे. एक दूसरे के साथ फिर वो इकट्ठे जाने के काबिल होंगे. I have a dream today. आज मेरा एक ख्वाब है. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर एक वादी सरबुलंद होगी
और हर एक पहाड़ और पहाड़ी को नीचा किया जाएगा। करदरी जगह करदरी जगह जो है हमवार की जाएगी और टेढ़ी जगह सीधी कर दी जाएगी और अल्लाह की शान जाहिर हो जाएगी और तमाम इंसान इसको इकट्ठे देखेंगे। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, ये मेरा यकीन है जिसके साथ मैं जुनूब को वापस जाता हूँ। With this faith we shall be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. इस यकीन के साथ हम मायूसी के पहाड़ से उम्मीद के एक पत्थर को तोड़ने के काबिल होंगे। With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. इस यकीन के साथ हम अपनी कौम की बेहंगम जनजनाहट को भाईचारे के खूबसूरत गीतों के साजीना में तब्दील करने के हामिल होंगे। With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. इस यकीन के साथ हम इस काबिल होंगे कि इकट्ठे काम करेंगे, इकट्ठे इबादत करेंगे, इकट्ठे जदोजहद करेंगे, इकट्ठे जेल चलेंगे, आज़ादी के लिए इकट्ठे उठ खड़े हो जाएंगे और ये जानते हुए कि हम एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. ये वो दिन होगा जब अल्लाह ताला की तमाम मखलूक नई मफहूम के साथ गाने के काबिल हो जाएंगे। My country, 'tis of thee, sweet land of liberty of thee I sing. मेरे मुल्क तुम्हारे ही वजह से आज़ादी के प्यारे सरजमीन आपका ही मैं गाता हूँ। Land where my fathers died, सरजमीन जहाँ पर मेरे बाप दादा फौत हो गए। Land of the pilgrim's pride, सियाहों के पहाड़ का मुल्क। From every mountain side, हर एक पहाड़ की तरफ से। Let freedom ring, आज़ादी की घंटी बजने दो। And if America is to be a great nation, this must become true. और अगर अमेरिका ने एक बड़ी कौम बननी है तो इसे ज़रूर सच वाक़ होना चाहिए। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. बस आज़ादी को नए हैम्पशायर के पहाड़ों के चोटियों से टनटनाने दो। Let freedom ring from the mighty mountains of New York. आज़ादी को न्यूयॉर्क के ताकतवर पहाड़ों से बजने दो। Let freedom ring from the heightening एलिग्नीज ऑफ पेंसिल्वानिया। आज़ादी के पेंसिल्वानिया के एलिग्नीज के बुलंद चोटियों से टनटनाने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। आज़ादी को कोलोराडो की बर्फ पोश चट्टानों से बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। आज़ादी को कैलिफोर्निया के खमदार चोटियों से बजने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन सिर्फ ये नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। आज़ादी को जॉर्जिया के पथरीले पहाड़ से बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। आज़ादी को टेनेसी के निगहबान पहाड़ से बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। आज़ादी को मिसिसिपी के हर एक पहाड़ी और चचोंदर के बनाए हुए मिट्टी के ढेर से बजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। हर एक पहाड़ के पहलू से आज़ादी बजने दो। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free lost, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. जब हम आज़ादी को घंटी होने देते हैं, जब हम इसे हर गांव और हर करिया, हर एक रियासत और हर एक शहर से बजने देते हैं, तो उस दिन को तेज़ी से लाने के काबिल होंगे जिस दिन अल्लाह ताला की तमाम मखलूक, काले लोग और गोरे लोग, यहूदी और ईसाई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, सब हाथों में हाथ डालकर ताउन करने और पुराने हबशी के रूहानी अल्फाज गाने के काबिल होंगे। आखिरकार आज़ाद, आखिरकार आज़ाद। अल्लाह का शुक्रिया कि हम बिलाहिर
बिलाखिर कार आज़ाद हैं।